پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ دوستو 1982 میں ایک مضمون لکھا تھا قادیانیت پہ، وہ 93 میں ختم نبوت میں اہم تحقیق کے ٹائٹل سے شائع ہوا تھا، اور کافی اس میں کامیابی رہا ہے۔ وہ پوائنٹ سناؤں گا، پھر اور باتیں سناؤں گا۔ تو پوائنٹ یہ تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو جھوٹا نبی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا جو اصل دعویٰ تھا شروع سے آخر تک، وہ امام مہدی کا تھا۔ امام مہدی جو قیامت کے پہلے جب زمانہ خراب ہو جائے گا، لوگوں کا ایمان خراب ہوگا، تو امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ ان کے دور میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، دونوں مل کے تبلیغ کریں گے۔ تو جب مرزا غلام قادیانی امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگ پوچھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو یہ چھوٹا تھا، تو یہ بولا کہ تمہارا ایمان غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، وہ تو سری نگر میں دفن ہے، دنیا میں فوت ہو گئے۔ اور بہت دلیل دینا پڑا اس کو، کیونکہ ایک دم نیا بات تھا اس کا۔ تو پہلا دلیل اس کا ہے انجام آتم سے۔ انجام آتم میں بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر نہیں گئے بلکہ زمین میں فوت ہو کے دفن ہو گئے۔ اور وہ بولتا ہے کہ یہ جو سورہ مائدہ کا لفظ ہے فلما توفتنی، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو میرے سوا معبود بنانا ہے، اللہ کا بیٹا بنانا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں نے نہیں کہا تھا، میں گواہ تھا جب تک موجود تھا، جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو تو نگران بن گیا۔ اوپر اٹھا لیا میں نے، آسمان میں اٹھا لیا۔ تو اوپر اٹھا لیا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں، یہاں پر ہی سورہ مائدہ میں، وہ ہے توفیتنی۔ توفیتنی بہت جگہ موت کے وقت بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی موت نہیں ہے، کیونکہ ایکسیڈنٹ اور پلین کا ایکسیڈنٹ، گاڑی کا ایکسیڈنٹ، سائیکل کا ایکسیڈنٹ اور پانی کے جہاز کا ایکسیڈنٹ، سب میں لوگ مرتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرے، اور ایکسیڈنٹ کے معنی بھی موت نہیں ہے۔ مرنا الگ چیز ہے، ایکسیڈنٹ الگ چیز ہے۔ تو موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ بھی بولتا ہے اپنا نفس کا توفی کرو، توفیتنی یعنی موت کے وقت بولتا ہے کرو، موت کے وقت۔ اور ہر روز نیند کے وقت توفی ہوتا ہے ہر آدمی کے نفس کا، جس کا زندگی ہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور جس کا موت ہے تو اس کا نفس اوپر اللہ کے پاس رہ جاتا ہے۔ تو یہ روزانہ کا روٹین ہے۔ تو توفیتنی کے معنی موت نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہے کہ ادھر اس کے معنی موت ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے پہلے تو بتا رہا ہے کہ آیت بتا رہا ہے کہ جب تک زندہ تھے تو جب تک زندہ تھے نگران تھے، جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا تو نگران بن گیا۔ تو اس سے ثابت کر رہا ہے کہ یہاں لفظ توفتنی اس کے معنی موت ہے، اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے عیسائی مذہب میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا، ان کو خدا کا بیٹا وغیرہ نہیں بنایا تھا۔ جب وہ مر گئے تو پھر عیسائی لوگ ان کو خدا کا بیٹا وغیرہ وغیرہ بنا دیا، معبود بنا دیا۔ تو بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پہ زندہ ہے، تو آیت بتا رہی ہے موت کے بعد بنے گے معبود، تو پھر آسمان میں زندہ ہے، جس سے میں نے دنیا میں وہ موت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بولتا تمہارا ایمان غلط ہے آسمان میں زندہ ہونا، کیونکہ آیت بتا رہا ہے کہ موت کے بعد بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا کتاب لکھ رہا ہے مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کا جب واقعہ ہوا تھا، جو کراس پہنتے ہیں عیسائی لوگ، اس کے بعد ہم لوگ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے،
कादियानी लोग तो मसलूब हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको बेहोश कर दिया और वो दफन हो गए। और 3 दिन बाद जिंदा होके कब्र से निकले, होश में आके कब्र से निकले, शागिर्दों से खाना किए और हिजरत करके चले गए अफगानिस्तान होते हुए, बहुत जगह गए और फाइनली श्रीनगर में इज्जत मिला, उधर में मुकीम हो गए और वहीं फौत हुए। और उधर एक मज़ार बताया कि ये उनका मज़ार है, 120 साल की उम्र में फौत हुए। अब ये 120 बोल के फंस गया, वो इसलिए फंस गया कि जो मौजूदा कैलेंडर है ये एडी लिखते हैं, 2025 एडी के मैंने फेमी से लोग इसको आफ्टर डेथ समझते थे इंग्लिश का, लेकिन ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, ये लैटिन ज़बान का है। इसके मैंने एनो डोमिनो है। जब वो 1 साल के थे तो उनका पैदाइश से कैलेंडर शुरू हुआ। जब वो 1 साल के थे तो कैलेंडर भी सन 1 था, 180, और जब 120 साल की उम्र में फौत होंगे तो सन 120 हो जाएगा। तो अब वो जो बोलता है कि मौत के बाद शिर्क होगा तो सन 120 के बाद होगा, अकॉर्डिंग टू हिज बुक्स। अच्छा, तो अब तीसरा किताब लिख रहा है चश्मे मसीही, उसमें लिख रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे और बहुत ही नेक थे, जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा बना दिया। अब पौलुस जो है सन 65 में फौत हो गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल तक वहाँ जिंदा रहे और मरने के 55 साल पहले फलस्तीन में पौलुस के जरिए माबूद बन गए। तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो मैंने बोला कादियानी जज भी मंजूर, दुनिया का हर सुप्रीम कोर्ट मंजूर, पाकिस्तान का शर्त नहीं, लंदन अमेरिका जहाँ करो, कादियानी जज भी मंजूर हो। कादियानी जज बोल दे कि ये आर्टिकल गलत है तो 1 करोड़ नगद इनाम, फिर 3.5 करोड़, काफी लंबा रहा। अभी तो कोई लिमिट नहीं है। अभी लिमिट नहीं है इसलिए कि शैतान के चले किताब लंदन से छापा, तो जो ईमान उनका था पहले उसका अपोजिट उसमें छाप दिया 13-14 जगह कि वो कश्मीर में जिंदा थे और पौलुस ने उनको यहाँ फलस्तीन वगैरह में माबूद बना दिया। तो अब वो बात ही खत्म हो गया, उनका चैलेंज जो था खत्म हो गया। अच्छा, ये चैलेंज दिया था 22 जनवरी 1897 में और मैंने इसका जवाब दिया 1982 में, तो इसके मैंने 85 साल बाद अल्लाह के फजल से मेरे थ्रू जवाब आया और इस वजह से ये सिपासनामा भी मिला मेरे को कराची यूनिवर्सिटी से। अभी 22 फरवरी को वो 25 साल हो गया इसको मुबाला हुआ था। तो ये मजमून इतना टाइट था कि इसका जवाब नहीं दे सके, तो फिर मैंने इनको मुबाला का भी ऑफर कर दिया, मुबाला में भी नहीं है। अब इनके लिए बहुत मुसीबत हो गया कि कादियानी जज भी मंजूर, मुबाला भी ऑफर और सब कुछ हो चुका है और अब जवाब भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरे को 3 जून मॉडल कॉलोनी में 1999 3 जून को मुबाला ऑफर किया। मुबाला के मैंने है कि मुनाजरा खत्म हो गया, बातचीत बंद, अब अल्लाह लानत भेज के वजाहत कर देगा कौन सच्चा कौन झूठा। तो अल्लाह के फजल से 3 जून को मुबाला हो गया और 30 जुलाई को एक जलसा था, इनका सालाना जलसा होता है लंदन में, 34वां सालाना जलसा था। उसमें 18,000 कादियानी, काफ़ी बड़ा मजमा था। उसमें ऐलान किया कि मुबाला कबूल कर लिया हूँ और ये भी बोला कि मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 1 साल मुबाला करने वाले को झूठा साबित कर देगा। तो मुबाला के एग्रीमेंट वगैरह सब इसमें जरूर है, ये भी दे देना एक कॉपी सबको, इसके बगैर खाली उसका क्या मजा आएगा। तो वो क्या बोल रहे थे, तो पाकिस्तान में एडवर्टाइज करना मुबाला का मेरा जिम्मेदारी था और लंदन के मैगजीन वगैरह में कादियानियों का जिम्मेदारी था। तो लंदन का जो उनका ऑफिशियल मैगजीन है अल फजल, उसमें 20 अगस्त को सबसे पहले दफा खबर शाया हुआ, मुबाला हो गया। अच्छा, सुबह अखबार निकला, मैगजीन था निकला, अब तो हो जाता, और उसी रोज जुम्मा का खुतबा देने आया। वो घंटा 1.5 घंटे का देता, लेकिन उस दिन 10 मिनट का कोशिश किया करने देने का, लेकिन उसके जबान से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे सही और यूं लग रहा था कि फालिज का हमला हो गया है। तो उसको 10 मिनट बेकार किया और हमेशा ये प्रोग्राम लाइव नशर होता है, उस रोज भी 10 मिनट का तो नशर हुआ होगा, लेकिन अखबार में ये लोग लिखे हैं कि उस रोज का नशर ही नहीं हुआ। क्योंकि क्या नशर करते हो उसमें, अल्फाजों से उसको स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन
जो जुबान से इतने वो अल्फाज को नहीं सुनाया, तो नशर भी नहीं किया, तो ये भी एक दलील है। उनके अपने अखबार में लिखा हुआ है कि नशर नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ख़त्म नबूवत जो इधर में इदारा है, उसका मैगजीन होता है अफरोज़ा, वो मैगजीन में लिखा था नवंबर के इशू में कि मिर्ज़ा ताहिर नॉर्वे में जुम्मा का खुतबा देने आया जो सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन इसका एक लफ्ज़ भी किसी के पल्ले न पड़ा। यूँ लगता था कि मलून के ज़बान पर फालिज का हमला हुआ है। इसको उसी वक्त इमरजेंसी में ले गए और 10 सितंबर को वो आया। और ये खबर भी अल-फज़ल छाप दिया है कि 10 सितंबर वो खुद इकरार कर दिया कि मेरे दिमाग में परेशानी थी और वज़ाहत से बात बयान नहीं कर सकते थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपके सामने आके नमाज पढ़ाऊँ या बयान करूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं सब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। खैर ये सब तो बेकार बात था, लेकिन 20 अगस्त को हो गया और 20 अगस्त के बाद 10 सितंबर यानी 21 दिन बाद वो आया, अपना शक्ल दिखाया और बयान किया। और इसके बाद भी अखबार में अपील आते रहे। और दुनिया भर का दस्तूर है, आप सबके नॉलेज में है कि जब कोई लीडर बीमार होता है तो अखबार में दूसरे दिन से आवाम को अपील करते दुआ करो। ये 10 सितंबर तक जब तक थोड़ा बात करने के लायक नहीं हुआ तो किसी को खबर ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है। कोई अखबार में अपील नहीं, तबीयत के लिए ही करो वो करो। और फिर जब 10 सितंबर का आ गया तो सबसे पहले वो जो उसके बाद जो हफ्ते रोजा आया उसमें लिखा है, कौन सा तारीख है तक याद नहीं आ रहा, अच्छा बहरहाल उसमें लिखा है कि अपील कर रहा है कि दुआ करो और सदका दो और ये करो वो करो। अक्टूबर तक या और भी देर तक आते रहा अपील। तो ये पहला मौका था ऐसा दुनिया में कि जब लीडर बीमार पड़ा तो अपील नहीं आया, जब कुछ बेहतर हुआ तो अपील आना शुरू हो गया। तो ये 4 साल के अंदर लानत आना था, लेकिन अखबार निकला और चंद घंटों के अंदर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। तो यह फैसले से साबित हो गया कि कादियानियत बिल्कुल झूठा है और बाकी इस्लाम सच्चा है। और इसके साथ ये इसका जो दादा था झूठा नबी मिर्ज़ा कादियानी, वो बोला था अगर मुबाला हो जाए, मुबाला में एक्सेप्ट होना ज़रूरी है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो जो सच्चा है उसकी ज़िंदगी में झूठा सबसे पहले फौत होगा। तो वो 2003 19 अप्रैल को फौत हुआ और 19 अप्रैल 2003 में फौत हो गया। मैं अभी तक बयान कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है अगर ऐसे ही सेहत रहा तो और काफ़ी लंबा अरसा बयान चलते रहेगा। और अगर पहले चले गए तो आप लोग का जिम्मेदारी इसको आगे बढ़ाइए।